Welcome to Centurion Defense Academy. So again, I will be discussing one more topic regarding your SSB, which is very important. The topic is of current affairs. In the recent times, you might have heard a kind of an economic war between United States of America and China. Basically, अगर मैं मोटे-मोटे तौर पे बात करूँ तो it is not only the economic war, it is a kind of a dominance war between America and China. तो देखो ये वॉर की शुरुआत कहाँ से हुई, ये economic war, ये आया पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से? See, actually what happens way back in 2016 or 17. The US economy at that time, US economy was approximately $19 trillion and the Chinese economy was approximately $12 trillion. At that time, Chinese realized that now they are having a chance to dethrone United States of America and they can become the world's biggest economy. So for that, their premier, that is Xi Jinping, decided to take certain kind of economic reform, to bring certain kind of economic reforms in China. As we all know that China is basically one of the world's biggest manufacturer of each and everything. From whatever the thing you talk about, of each and everything, China is one of the world's biggest manufacturer. And most of the things China has, the United States of America has outsourced to China. Means what does it mean? The technology is of United States of America, but that is manufactured in China. So basically what happens, the maximum profit is gained by the people of United States of America, not by the people of China. People of China get the maximum profit, get the profit only for the purpose, for only what they manufacture. So at that time in 2016 and 17, Xi Jinping launched a new concept which was called as basically self-reliance China. अभी हिंदुस्तान में भी कुछ वैसा ही launch हुआ है, which we call it as आत्मनिर्भर भारत. So self-reliance China was a scheme launched by Xi Jinping in 2016 and 17. Now what was self-reliance China? Actually what happened, China, अगर आज के डेट में आप एप्पल का आईफोन खरीदते हो, नाउ if you are purchasing the iPhone of Apple, तो you know that आप तो सीधे ब्रांड देख करके खरीद लेते हो कि एप्पल का है, चलो ठीक है हम खरीद लेते हैं. But are you aware that it is actually manufactured in China? वो एक्चुअली चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है. इसी तरीके से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका 100% तो नहीं, लेकिन आप 99% मैन्युफैक्चरर चाइना ही है. दैट इज सेमीकंडक्टर्स. देखो साहब, सेमीकंडक्टर आज की डेट में हर चीज में लग रहा है. वेदर वी टॉक अबाउट मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, इवन कई सारी ऐसी मशीन है. अगर इंडिया ने अभी राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा है तो उसमें भी सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं. जो आपके पास कार है उसमें भी सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं. एवरीवेयर सेमीकंडक्टर इज देयर. नाउ सेमीकंडक्टर होता क्या है? Most of you might be the science students, so you might be aware कि actually सेमीकंडक्टर होता क्या है. देखो तीन चीजें होती हैं. फर्स्ट इज इंसुलेटर फॉर एग्जांपल ग्लास, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, बिजली नहीं जा सकती यहां से. सेकंड इज कंडक्टर, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम और कॉपर, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से हो सकता है. और इन दोनों के बीच में आता है सेमीकंडक्टर, जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्लोली होता है एंड वी आर हैविंग द एबिलिटी टू मैनिपुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम चाहें तो इसे रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं. तो ये सेमीकंडक्टर जो है आज की डेट में हर चीज में इस्तेमाल हो रहा है. हर चीज में आपको, या जिसे आप आसान भाषा में चिप भी कहते हो, जैसे मोबाइल में चिप पड़ती है, हर चीज में, टीवी रिमोट में देखो उसमें भी चिप पड़ी हुई है, तो हर चीज में चिप पड़ी हुई है. तो ये सेमीकंडक्टर जो है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है 99% चाइना में ही होती है. 1% अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है इट हैपेंस इन कोरिया, इट हैपेंस इन जापान. सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज देयर इन सम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोलैंड और स्पेन में भी हल्की फुल्की मैन्युफैक्चरिंग होती है. अदरवाइज 99% मैन्युफैक्चरिंग ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में होती है. नाउ सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज एन एंटायर बिजनेस विच, जो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जो है, इट इज अ यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी.
एंड यूएस हैज आउटसोर्स्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स टू चाइना। इन्होंने चाइना को आउटसोर्स किया है। तो चाइना ने 2016-17 में एक सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट निकाला कि अब हम खुद से अपने इनोवेशंस करेंगे, अपने खुद से डेवलपमेंट करेंगे, अपनी मार्केट खुद ब खुद खड़ी करेंगे। अगर हम अपनी खुद की मार्केट बना लेते हैं तो इट वुड बी इजी टू dethrone यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द इकोनॉमिक पावर। हम उनको हटा सकते हैं फिर उस तरीके से। तभी से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में रिलेशंस खराब होना शुरू हुए। आप याद करो, इन द ईयर 2017 डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड द मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वहीं से चाइना और अमेरिका के रिलेशन खराब होना शुरू हुए, क्योंकि चाइना ने सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस अपने देश में कर दिया था। अब चाइना ने किया क्या? डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी फेमस स्पीच है ऑन चाइना 2018 में इन्होंने दिया था अमेरिका में। इन्होंने कहा था कि चाइना हैज आउटप्लेड अस, दे हैव फूल्ड अस। उन्होंने हमें बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रॉट चाइना in WTO, World Trade Organization in 2001. So USA brought China in WTO in 2001. Thereafter, China was able to get a lot of grants from WTO, World Trade Organization से अच्छा खासा grants चाइना को मिलने लगे। अब चाइना ने क्या किया? China started investing in their own talent। वहीं उसी समय से 2001-2002 के आसपास से they started sending their people to European countries as well as to United States of America, so that their people can learn the technology in USA as well as Europe. They invested billions of dollars in their people, and slowly from 2016 they started calling back those people back to China, so that they can have their own innovative manufacturing industry in China. अब यहाँ पर इंडिया का कॉन्सेप्ट देखो, इंडिया और चाइना में क्या डिफरेंस आता है। इंडिया से अगर कोई यूएस जाता है तो मुश्किल से 10% लोग लौट के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद का कोई आम गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि आप उनको कल को वापस बुला लोगे, आप यहाँ पर भी एक प्रॉपर इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुई। हमारे यहाँ दो वी आर वेरी गुड इन आईटी सेक्टर, इसके अलावा बाकी अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर से इन सब चीजों में, इसमें इंडिया अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं। और साथ ही साथ होता क्या है कि हमारे देश के जो लोग वहां जाते हैं यूएस में, बहुत कम लोग वापस आते हैं, मोस्ट ऑफ देम गेट सेटल्ड इन यूएसए ओनली। बट चाइना प्रोवाइडेड दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर and that kind of infrastructure in their own country, so that they were able to call back those people from United States of America or Europe in their own country. उन्होंने बुलाना वापस चालू कर दिया। Now what happened? United States of America started putting some kind of sanctions on China since 2008. 2018 से चाइना के ऊपर कुछ ना कुछ सैंक्शंस यूएसए लगाने लगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्सेप्ट है वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हम अमेरिका को ही सबसे महान देश बना के रखेंगे, इसके आगे कोई नहीं आ सकता है। तो अब इन्होंने किया क्या, सैंक्शंस लगाने चालू किए, और सबसे मेजर सैंक्शन जो लगाया दैट इज ऑन सेमीकंडक्टर्स के ऊपर लगाया। इसीलिए आज की डेट में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। एक तरीके का सेमीकंडक्टर युद्ध हो रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। अमेरिका ने साफ कर दिया है अभी आफ्टर कोरोना पैंडेमिक, जब से आ चुका है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, America clearly said that United States, that the Chinese people cannot manufacture nor they can sell any semiconductor without the permission of China. अब आप अमेरिका की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज का, चाइना की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम देखते हो, जैसे हुआवे है तो इनकी बड़ी कंपनी है। इस तरीके की बड़ी कंपनीज जो हैं वो तो बैठ गई पूरी तरीके से, दे आर अबाउट टू कोलैप्स, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए। अमेरिका ने साफ कह दिया कि नहीं भाई, अब आप यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप कोई भी सेलिंग नहीं कर सकते विदाउट आवर परमिशन। एंड आफ्टर कोरोना वायरस व्हाट अमेरिका इज डूइंग, America is continuously taking out their investment from China। वो वहां से सीधे अब अपने सारे इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे उसने निकालना शुरू कर दिया है। Whatever they have invested, whether in the field of industry, whether in the field, मतलब इंडस्ट्री में भी मेन जो
एक तरीके से कहा जाए जो सबसे बड़ा हिट दिया है वो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, और सेमीकंडक्टर आउटपुट को धीरे धीरे वहां से अब निकालना चालू कर दिया है ना। वहां से वो निकालने लगा तो अब इंडिया अपना एंट्री यहाँ पर समझ रहा है। नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि नाउ वी आर हैविंग अ गोल्डन चांस कि हम कैसे इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल नीड है आज की डेट में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बन रहा है, कोई भी मशीन बन रही है तो उसमें सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंडिया भी अब इसमें आना चाह रहा है। तो अब आज की डेट में इसीलिए इंडिया इज कंटिन्यूअसली वेलकमिंग द अदर यूरोपियन इंडस्ट्रीज एज वेल एज अमेरिकन इंडस्ट्रीज दैट दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी एक सीख चाइना से ले ली है। दे आउटसोर्स देयर मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी टू चाइना ओनली। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 15-16 इयर्स, ये आउटसोर्सिंग जो अमेरिका ने शुरू की वो 1992-93 के आसपास से शुरू की, और 2010-11 के पास से जो है चाइना इज कंटिन्यूअसली चैलेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 15-16 साल के गैप पर जो है कहीं ना कहीं चाइना लगातार यूएस को चैलेंज करने की पोजीशन में आ चुका था। तो अमेरिका अब ये नहीं चाहता कि वो पूरा का पूरा अपनी इंडस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को अब दोबारा आउटसोर्स कर दे। तो अमेरिका क्या कह रहा है कि सब ओके, वी विल इन्वेस्ट इन इंडिया बट वी विल नॉट कंप्लीटली इन्वेस्ट इन इंडिया। हम पूरी तरीके से हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं करने जा रहे। वी विल इन्वेस्ट इन एंटायर साउथ एशिया। तो इसमें कई सारी कंट्रीज आ रही हैं। इंडिया इज देयर, इंडोनेशिया इज देयर, सिंगापुर इज देयर, मलेशिया इज देयर, म्यांमार इज देयर। तो ये कई सारी कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। अब इस वॉर का एक्चुअल रिजल्ट हो क्या सकता है, व्हाट शैल बी द इम्पैक्ट ऑन चाइनीज इकोनॉमी एज वेल एज अमेरिकन इकोनॉमी। पहली चीज तो आप क्या समझो, इट इज नॉट इजी टू ब्रिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट इन साउथ एशिया। एक रात के अंदर आप इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को वहां से शिफ्ट करके यहां नहीं ला सकते हो। इट विल टेक सेवरल ईयर्स to build that kind of industries, to build that kind of companies. It will take some time to train the people of South Asia regarding the semiconductors or whatever the industries they are bringing over here. तब तक अमेरिका को डिपेंड कहीं ना कहीं चाइना पर ही करना पड़ेगा बाय दैट टाइम। तो मतलब कम से कम 4 से 5 साल अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाइना पर ही डिपेंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खास तौर पे ये जो कोरोना पेंडेमिक हो गया उसके बाद से जो उनके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक व्यू बड़ा क्लियर है। वो बार बार कई सारे इंटरनेशनल स्टेजेस पे बोल चुके हैं दैट चाइना वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस। वो तो यहां तक बोल चुके हैं कि चाइना हैज इंटेंशनली मेड such kind of virus and they have distributed it all over the world so that there may be economic slowdown। इसको एक इस एंगल से भी देखा जा रहा है क्योंकि यूएस लगातार चाइना के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर रहा था, तो चाइनीज इकोनॉमी कहीं ना कहीं श्रिंक कर रही थी, चाइनीज इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो उससे बचने के लिए चाइना ने ये बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया और इस बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को क्रैश करा दिया। और इस कंडीशन पे अभी अगर आप बात करो तो जो भी दुनिया की बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें सबसे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अभी सिर्फ चाइना की है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट माइनस में जा चुकी है, बहुत बुरी तरीके से माइनस में जा चुकी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दिस इज द 5th इकोनॉमिक रिसेशन इन इंडिया। ये भारत में 5वां इकोनॉमिक रिसेशन है एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक रिसेशन जिसके बीचों बीच में आज हम लोग अभी टाइम बिता रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक रिसेशन। अभी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ आई थी वो -23.8% आई थी एंड इट इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ ईयर 2020 ये -8% तक रहेगी। तो मतलब अभी जीरो पर भी नहीं आएगी। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू कम अप टू जीरो। तो ये हमारा सबसे बड़ा रिसेशन है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन रिसेशन का शिकार हो रखा हुआ है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेशन का शिकार हो रखी हुई है। तो इस कंडीशन पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्ट्रिक्ट कदम उठा रहा है अगेंस्ट द चाइनीज। उनको ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो यूएस ने पहले कुछ सैंक्शन इंपोज किए इसकी वजह से हुआ। अब देखिए इस पे अमेरिका क्या क्या कर रहा है। पहली चीज तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई सेमीकंडक्टर से लेकर के बाकी सभी चीजों में, और वहां से अपनी इंडस्ट्रीज को मूव ऑन कराना चालू कर दिया। दूसरी चीज क्या कर रहा है, दूसरा सबसे बड़ा इशू है रिगार्डिंग द ऑयल, क्रूड ऑयल को लेकर के। देखिए साहब, एक रिपोर्ट आई थी 2020 फरवरी में that this might be the last decade of crude oil। हो सकता है ये आखिरी दशक है क्रूड ऑयल का, मतलब सन 2030 तक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पूरी दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाए। क्रूड ऑयल खत्म मतलब लाइफ रुक जाएगी, सिंपल सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल कैसे, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सारी चीजें, केरोसिन, ये सारी चीजें क्रूड ऑयल से ही निकलती हैं। अगर ऑल टोटल हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 94 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो क्रूड ऑयल के जरिए निकलते हैं। अब है क्या क्रूड ऑयल की सिचुएशन, क्रूड ऑयल दुनिया में बेसिकली तीन मेन कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है दैट इज ब्रिट क्रूड ऑयल, इसे कहते हैं। ब्रिट क्रूड ऑयल का मतलब विच इज प्रोड्यूस्ड इन रशिया एज वेल एज इन बेसिकली विच इज प्रोड्यूस्ड इन रशिया, यूरोप एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज। जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज हो इन जगहों पे प्रोड्यूस होता है। दूसरा होता है जिसे टेक्सास क्रूड ऑयल कहते हैं, जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रोड्यूस होता है। तीसरा है दुबई क्रूड ऑयल। दुबई क्रूड ऑयल मतलब जो गल्फ कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है। ये तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा हुआ है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, पूरे के पूरे साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया क्या, आप एशिया की भी बात करिए, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दुबई क्रूड ऑयल। अब ये जो तीनों क्रूड ऑयल है, इनके एक्सट्रैक्शन की सारी लिमिट अब धीरे धीरे क्रॉस होती जा रही है। अब क्या सिचुएशन है कि अब ज्यादा क्रूड ऑयल नहीं बचा है, लेकिन यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक चमत्कार हो गया। ये चमत्कार क्या हुआ, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट, बेसिकली ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं थे, ये प्राइवेट लोग ही थे। इन लोगों ने एक नए तरीके के क्रूड ऑयल को निकालना शुरू किया जिसे बोलते हैं शेल ऑयल। ये बेसिकली ओशन के नीचे मिलने वाला क्रूड ऑयल है, समुद्र के नीचे मिलने वाला क्रूड ऑयल। तो ये शेल ऑयल निकालने में 2010 के आसपास जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ लोग सक्सेसफुल हुए। उसके बाद 2015-16 के आसपास से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्टिंग द शेल ऑयल। यूएसए जो है वो शेल ऑयल को लगातार निकाल रहा है। आप एक चीज ध्यान दो, 2015-16 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कई सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इन जगहों पे अपनी प्रेजेंस बनाए हुए था। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर जगह से जा रहा है, निकल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं अब यहां से, क्योंकि उसके पास नया मीन्स आ चुका है क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का। तो अब ये एक सबसे बड़ी बात है। हाँ, फिलहाल अभी शेल ऑयल की उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में। रीजन उसके पीछे क्या है, शेल ऑयल इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट। तो वो एक्सपेंसिव है इसीलिए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा। यूएस क्या चाह रहा है कि दुबई हुआ, दुबई का क्रूड ऑयल हुआ या फिर ब्रिट क्रूड ऑयल हुआ, ये क्रूड ऑयल जो है ये धीरे धीरे अब खत्म ही हो जाए, तो फिर हमारे पास ही क्रूड ऑयल बचेगा और हम ही बेचने वाले होंगे। यहां पर इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट कर रहा है विद सम अदर कंट्रीज, ताकि वो लोग चाइना को क्रूड ऑयल और इन चीजों की सिचुएशन से स्कार्सिटी पे लेते जाए, चाइना को कोई आदमी क्रूड ऑयल सप्लाई ना करे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग to impose certain kind of sanctions on China। देखो ये जरूरी भी है, रीजन उसके पीछे क्या है, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, it is very important to impose certain kind of sanctions on China because Chinese have a ideology of imperialism, साम्राज्यवाद की नीति। चाइना ने बहुत कुछ गलत कर भी रखा है, वो किसी और दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने अपने देश में ही कितने रायते फैला रखे हुए हैं, लाइक इन हांगकांग द कंडीशन ऑफ वीगर मुस्लिम्स, ये सारे इश्यूज उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं।
And Xi Jinping is right now under several kind of radars, not only from the international community but also from the national community, but also within the China. तो इस समय चाइना को इस तरीके का एक लेसन देना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर चाइना को अभी इकोनॉमिक सेटबैक लगते हैं तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस इंडिया विल बी हैविंग एन अपर एज। इंडिया को एक अपर एज मिलेगा कि वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा सके। Okay, so this is basically the economic war between United States of America and China, जो सेमीकंडक्टर से लेकर के क्रूड ऑयल से लेकर के हर तरफ की ओर फैला हुआ है। अंडरस्टूड? तो दिस इज ऑल इन योर दिस टॉपिक बिटवीन द इकोनॉमिक वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। इन अनदर वीडियो आई विल बी टेकिंग सम अनदर करंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर एसएसपी। थैंक यू। जय। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।